Hello, everyone. Hi, and welcome to this session. Now, let me just start this, and then we are ready to do something really, really amazing. Okay, and let me just fix this. Okay, so hi, everybody, and welcome, welcome, welcome. I hope you guys are doing great. I hope you guys are keeping fine, and a very excited welcome to this session. Now, because we're proceeding towards boards, this session is going to be, I hope, very resourceful to you. So just sit with a book right now and a pen, pencil, whatever suits you. But just sit here because आपके पास 9th and 10th of December का दिन है to revise for your boards. So you can actually save these links that I'm doing, okay? And इससे क्या होगा, इससे क्या benefit होगा आपको? You will be revising some topics even if you don't study live with me. This is as good as live, and there are some very important points of the poetries I'm going to tell you. So today what we're going to do is Dust of Snow. आज हम इस poetry से start करेंगे, and I'm going to tell you all the important things about this poetry that can possibly come as MCQs that are twisted and turned. Okay, so this poetry we are not going to sit and understand and elaborate the summary and all of that, लेकिन हम क्या करेंगे, हम स्मार्ट स्टडीज करेंगे, हम सारी पोइट्रीज के साथ ही करेंगे. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद डस्ट ऑफ स्नो, एंड डस्ट ऑफ स्नो में हम क्या क्या करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डू द पोइटिक डिवाइसेस. इसमें से कौन कौन से पॉसिबल पोइटिक डिवाइसेस आ सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इट इज, ओके, हु इज द ऑथर, वी ऑल नो, एक्चुअली नॉट द ऑथर, द पोएट. सो हु इज द पोएट, वी ऑल नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. एंड हम डिस्कस करेंगे आज का एजेंडा जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी द की पॉइंट्स ऑफ दिस पोइट्री, जहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं, and certain interesting vocabulary words which are related to this poetry, which will help you in not only understanding this poetry but also when you're doing your unseen passages. So before we dive into this session, I hope you guys know what An Academy is all about, and it is certainly a very, very interesting platform, and I believe that you guys should be a part of our family, if not as a plus subscriber or an iconic subscriber, but you can always enjoy the lot of free content that we create for you, which is absolutely great quality content. Okay, so do not forget to follow me on An Academy. आप मुझे जैसे ही follow करोगे, search my name, that's me. So जैसे ही आप मुझे follow करोगे, what will happen, आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे जब जब मैं स्पेशल क्लास के लिए लाइव आऊँगी. प्लस आप मेरे नीचे स्क्रॉल करोगे ना, जब यहाँ से नीचे जाओगे, व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, सो व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड इज दैट ऑल द क्लासेस दैट आई हैव टेकन फॉर फ्री. तो यहाँ पे आपको मेरे सारे फ्री क्लासेस मिल जाएंगे जब आप यहाँ से नीचे जाओगे, व्हेन यू स्क्रॉल डाउन. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री क्लासेस मिलेंगे जब आप मुझे फॉलो. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने चाहती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, so do not forget to click on it and check that out. Also guys, do not forget to like, share and subscribe this video. And if you really enjoyed learning with me this poetry and all other poetries that I'm going to do, then please make sure you leave a comment for me, a feedback comment. Okay, please be polite and kind. Okay, not complimenting but polite and kind comments. So if there's anything that you want me to come up with, just let me know in the comment section, and whatever you liked about this video, just let me know in the comment section. But right now, just sit straight with the book, because your educator Vandana Bajaj is right here, who is a plus educator, and that's little bio, a quick short introduction. You should always know your educator, you should always know who your teacher is. So hi, I'm Vandana Bajaj. I'm a plus educator with An Academy. I have been teaching for last 13 and a half years, and I want you to take the crux, the essence and the benefit of my experience of teaching. And with An Academy, I've been associated for over a year and a half, and my journey has been absolutely beautiful. I am also a CS. I have done my NET, which qualifies me to be an assistant professor across India. I have also done my master's in commerce and bachelor's in management studies. My subject expertise on the platform of An Academy is for K-12 category, class 9, 10, 11, 12. English and economics for class 9th and 10th. If you haven't checked out my handwritten mind mapping notes for economics, trust me, you're missing out on something, so do check that out. And right below my picture जो आपको screen पे दिख रहा है, वो मेरा code है VB Live. Do not forget to use this code to unlock all my classes and to participate in all the things that I'm going to inform you about. आज मैं आपको बहुत सारी important चीज़ें भी बताऊंगी इस session में. So पहले हम इस सेशन को क्रैक करते हैं. लेट्स फोकस ऑन व्हाट दिस सेशन इज ऑल अबाउट. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि
कि there is a program that Unacademy has arranged before your boards for your practice, so please make sure it's absolutely free of cost. You all can be a part of it. तो बिल्कुल वो एग्जाम देना, be a part of it. मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी towards the end of the session, but फिलहाल हम फोकस करेंगे on cracking this absolutely beautiful poetry, a very small poetry with a lot of content to focus on. छोटी poetry है but बड़ा धमाका करेगी. So let's just start. Okay, alright, so Dust of Snow, we all know, has been written by none other than Robert Frost. You can see his name on the slide. I know this literally gives us that winter feeling, and it just brings that smile and ooh, gorgeous effect, and that smile, keep that up. Alright, तो poem पढ़ने से start करने से पहले, it's always important to get through what the lines are. So the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब ये poetry यहाँ खत्म हो जाती है. It's just like an 8-line poetry. Ooh. So this is an important point. Okay, now we're going to note down everything that's important for us. So starting with the poetry, today's session, Dust of Snow. I know I'm using this for the first time. Vinay sir, our educator for maths and I think physics and biology, he advised me to use this, so here I am and I'm trying it for the first time, so sorry if you find me a little uncomfortable with this. Okay, so coming to the first point is what? It is an 8 lines poetry. Why am I making you write this, guys? MCQ. 8 lines poem it is, and it is a very beautiful poetry. So we can say if you have an option that it is a short poem or it is a short tale, you can absolutely consider this point. Okay, so ये मैं सारे words आपको बता रही हूँ जो आपको MCQs में आ सकते हैं. Alright, so poetry के बारे में पहली चीज़ clear हो गई. Second thing that we're going to do about this poetry is the rhyming scheme of the poetry. Very important. This poetry actually has a rhyming scheme. तो इसकी rhyming scheme क्या होती है? Everybody quickly just watch on the screen. So आप last word देखोगे of every line. ठीक है, आपने क्या करना है? आपने last word देखना है. So you have the crow word. So सबसे पहले word को हम alphabet A देंगे, कुछ भी और नहीं देंगे, A ही देंगे. Okay, and then you will see the second word. The second word is me, and it is not rhyming with the crow. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? B. थर्ड वर्ड जो है स्नो क्रो राइम होता है, तो हम इसको वापस बोलेंगे A. ट्री और मी राइम होता है, तो हम उसे बोलेंगे B. ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम. ओके, सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं. हार्ट किसी भी चीज से राइम नहीं होता है, तो इसको हम बोलेंगे C. मूड किसी भी चीज से राइम नहीं होता, गोइंग इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर वी विल कॉल इट एज D. फिर पार्ट किसी भी चीज से राइम नहीं होता है यार हार्ट से, तो वील कॉल इट एज C. एंड रूड एंड मूड आर राइमिंग विद ईच अदर, सो वी कॉल इट एज D. अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, बिकॉज द सेकेंड स्टैंजा हैज द फर्स्ट has the same rhyming scheme ABAB like the first stanza. तो यहाँ पे आप जो rhyming scheme लिखोगे, आप लिखोगे the poetry rhyming scheme is ABAB, ABAB या ABAB, CD दोनों सही होगा. और पूरी पोएट्री की अगर कॉमन राइम स्कीम बोलनी होगी तो वो क्या हो जाएगी? ABAB. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स जस्ट राइट दिस ओवर हियर. ओके, सो अब राइम स्कीम ऑफ दिस पोएट्री, आपको लाइंस देके भी पूछ सकते हैं, और ये पोएट्री छोटी है इसलिए बिना लाइंस दिए, बिना प्रोज एक्सट्रैक्ट दिए भी पूछ सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी ABAB फॉर 2 stanzas. Okay, this is something that can absolutely come as your MCQs. The most important thing, this poetry has been written by Robert Frost. Okay, so that is also what you have to remember. अब आते हैं आगे. अब इस पोएट्री में क्या क्या दिया गया है? The crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. अब आपको याद क्या रखना है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली चीज जो आपको नोट करनी है वो है कि इसकी कैरेक्टराइजेशन और सेटिंग, मतलब प्लॉट क्या है पोएट्री का. व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द पोएट्री? द पोएट्रीज प्लॉट इज क्रो एंड द पोएट्रीज प्लॉट इज हेमलॉक ट्री. दोनों ही चीजें वेस्ट हैं, यूजलेस हैं, कोई इन्हें इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं करता है. इनफैक्ट लोग इनसे डरते भी हैं. वाई
are people scared of the crow and why are people scared of the hemlock tree? तो crow जो bird है ना, it is called as a scavenger, very important for your MCQs. ठीक है, it is called as a scavenger bird. Why do you call it as a scavenger? Because whatever remains are left, जैसे vulture आती है, okay, the vulture comes down, it breaks the the dead body or the dead fish or the dead animal, whatever it is, but it is dead, and then whatever is remaining after the vulture finishing whatever it has eaten, उसके बाद जो भी बच जाता है वो ये बर्ड आके खाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ स्कैवेंजर बर्ड. ओके, तो जाहिर सी बात है, इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग. ऑल्सो यहाँ पे आप एक और चीज़ कंसिडर करोगे, एंड व्हाट इज़ दैट इट ब्रिंग्स मिसफॉर्च्यून्स. ठीक है, तो ये क्रो को कहाँ से फ़ायदा होता है? द क्रो बेनिफिट्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द क्रो बेनिफिट्स फ्रॉम, ये सारे एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. ठीक है, द क्रो बेनिफिट्स फ्रॉम द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ अदर्स. जब दूसरों को नुकसान होता है तो क्रो को फायदा होता है. सो दैट इज द रीजन वी कंसिडर इट एज अ सिंबल ऑफ नेगेटिविटी, एंड इन दिस पोएट्री द क्रो इज सिंबलाइज्ड एज अ नेगेटिव क्रीचर. ओके, सो यहाँ पे जो क्रो है वो कैसा लग रहा है हमको? ही इज नेगेटिव. ओके, नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है. ओके, सो इट इज नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग sorrow and doom. Now what do you mean by doom? Doom is just another word for death. MCQs के लिए हमें पता होना चाहिए doom का मतलब क्या होता है. You should know what is doom, okay, when you are about to attempt your MCQs in the paper. So it is a very negative element. Okay, अब आगे बढ़ते हैं. Let's come down and talk about the hemlock tree. अब hemlock tree का स्वभाव क्या है? जैसे crow के लिए हमने बोला it is a scavenger. Hemlock tree is considered as a poisonous, venomous tree. Okay, it is considered as a, okay, now I don't know how do we really erase it. Okay, all right, so it is considered as a poisonous tree. Now why? Because it is a poisonous tree, people don't really want to go near it, people have no benefit from it, and therefore it is also representing a negative element, okay, of the nature. So लोगों की नज़र में it is not a useful tree, people stay away from it because its flower are poisonous, so लोग इसके आसपास जाना पसंद नहीं करते हैं. So we can say it is useless for people considering its poisonous nature. So useless for people. तो ये दो चीजें हैं about this poetry. Okay, so poem में क्या क्या use हुआ है? The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. अब यहाँ पे जब हम कहते हैं the way a crow shook down on me, अब आप setting समझो. ठीक है, the second important part of this poetry is to understand the setting of the poetry. So setting का मतलब क्या होता है जहाँ से आपको MCQ आ सकता है. So when I say the setting of the poetry is such that crow shakes the tree. बराबर, crow shakes the tree. Please remember, इसके बेसिस पे आपको MCQ आ सकता है. Why? So we don't know. ऐसा उसने क्या किया कि he shakes the tree? We don't know. हो सकता है वो बस बैठा हो आकर. The crow must have landed on the tree, or the crow must have moved on the tree, shifted on the tree, the branches of the tree, or the crow might, the crow was about to take a flight, just उड़ने वाला था पेड़ पे से, तब वो पेड़ हिल गया. So why the tree is shaken by the crow? What is the reason? We don't know. Okay, not given in the poetry. So it can be possibly any of the reasons that I just told you. क्रो खुद से नहीं हिला सकता पेड़ को, एंड उसने पोएट को खुश करने के लिए लाया है? नहीं. क्यों? बिकॉज इट इज नेचर. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर. ठीक है, द सेटिंग दैट हैज बीन शोन is a part of nature. Because it is a part of nature, it is not in human control. Are you understanding? क्या क्रो और ट्री हमारे कंट्रोल में है? नहीं है. सो इट इज नॉट इन ह्यूमन कंट्रोल. ओके, एक्चुअली इन नहीं, यहाँ पे अंडर आएगा, नॉट अंडर ह्यूमन कंट्रोल. ओके, तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. सो दीज आर द नेचुरल एलिमेंट्स विच आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ आवर कंट्रोल, बट they have an impact on us.
द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है दैट आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन इज दिस डस्ट ऑफ स्नो. पहली चीज तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. वाई इज इट कॉल्ड एज अ डस्ट ऑफ स्नो? बिकॉज ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, सो एक्चुअली स्मॉल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टाइनी पार्टिकल्स. इसलिए उसको डस्ट बोला गया है बिकॉज इट शोज वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो. अब ये जो रोल प्ले कर रही है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ आवर कंट्रोल, एंड द रोल दैट इट इज प्लेइंग इन दिस इज अ पॉजिटिव रोल. कैसे आगे पता चलेगा? सो इट इज प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल. व्हाई इट इज प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल? फ्रॉम व्हेन इट फॉल्स ऑन द शोल्डर ऑफ द पोएट. अब पोएट वहां क्या कर रहा है? पोएट वहां क्या कर रहा है? वी डोंट नो. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज poet is present in the scene, but what the poet is doing we don't know. हो सकता है वो वहां बैठा हो, चल के जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है. ओके, बट इट हैज नॉट बीन क्लियरली टोल्ड इन द पोएट्री. ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज. तो अब दो चीजें तो हमें पता चल गई इस पोएट्री में कि एक तो वाई एंड व्हाट ऑफ द पोएट्री इज नॉट गिवन. ठीक है, सो व्हेन यू रीड द पोएट्री, व्हाट इज नॉट गिवन इन द पोएट्री, आपको चार ऑप्शंस देंगे. सो प्लीज याद रखना, व्हाई एंड व्हाट ऑफ द पोएट्री इज नॉट गिवन टू यू. ओके, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. अब आगे बढ़ते हैं. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. तो अब यहां पे हमें समझ में आ गया दैट इट इज प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल. तो व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग जॉय, खुशी. ओके, इट इज समथिंग दैट इज पॉजिटिव के लिए दूसरा वर्ड ऑप्टिमिस्टिक. ओके, पॉजिटिव के लिए दूसरा वर्ड इज ऑप्टिमिस्टिक. ओके, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. पार्डन माई हैंड राइटिंग. ठीक है, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो अभी तक हमने जो भी लिखा है स्लाइड पे, I hope you guys have noted this down. If you have not noted this down, then please note it down. अब इसके आगे मैं आपको एक और important चीज़ बताती हूँ. Now, how do I insert? I need Vanessa's help. Okay, no, at the risk of sounding like really tech savvy. Okay, so next important point, meme coming up. Okay, next important point. Crow जो है वो black होता है, एंड स्नो जो है वो वाइट होती है. सो यू विल सी अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ दिस पॉइंट, ब्लैक एंड वाइट. सिमिलरली sorrow, darkness, and white is joy, peace, calm, serenity, and all of that. So this is also a silent expression in this poetry. अब हम आते हैं has given my heart a change of mood. अचानक से जैसे ही डस्ट गिरी, the poet becomes happy. And आगे की जो दो लाइन है वो ये है, and saved some part of the day I had rued. मतलब कि what do you understand by this? तो वापस पोएट के पास चलते हैं. I'll have to write it because मैंने नीचे और कंटेंट डाल दिया. So let's talk about the poet once again. Okay? So अब पोएट के बारे में हमें पता चलता है कि पोएट इज इन अ सैड मूड. पोएट कैसे मूड में है? पोएट सैड मूड में है, अपसेट है, डिप्रेस्ड है, रिग्रेटफुल है. ये सारे वर्ड्स आपके पोएट से रिलेटेड हैं. ओके, डिप्रेस्ड है, अपसेट है, रिग्रेटफुल है. Okay, now because he's sad, he's upset, he's depressed, he's regretful. So next चीज हमें क्या पता चलती है? भाई इतना दुखी है इसीलिए तो इसने ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं. ये हमें एक और चीज से पता चलता है. We come to know that the poet is really upset considering the examples that he has taken. Okay, yes. So पहली चीज तो हमें पता चलता है कि भाई बहुत दुखी है. दुखी क्यों है? बिकॉज द एग्जाम्पल, आम पोएट्स को देखो, लाइक ऑन एन ऑर्डिनरी बेसिस, और इफ आई कंसिडर द मेजॉरिटी ऑफ द पोएट्स, दे कंसिडर पिकॉक, मैना,
nightingale, for their birds examples in the poetry. But यहाँ पे इसने क्या किया है? He has taken an example of crow, he has taken an example of hemlock tree. तो ये सारे एग्जाम्पल से मुझे पता चलता है कि भाई बहुत अपसेट है, भाई नेगेटिव मूड में है, इसलिए एग्जाम्पल्स भी नेगेटिव ले रहा है. Are you understanding? So from his examples I come to know that the poet is in a bad mood. But however, then he switches over to a nice and a very pleasant example. So then he switches over to the example. He says that there is a change of mood that takes place. So over here we will say that there is a change of mood. मतलब पहले mood upset था, अब mood अच्छा हो गया है. So therefore I told you that it is the dust of snow that has been given a positive impression in the mind. It represents joy. तो जैसे ही change of mood हुआ, क्यों हुआ? I'm just going to use a short form. Because of snow. Okay, fine particles of snow. So I'm going to say because of dust of snow falling on his shoulder, इसलिए उसका ये जो मूड है वो चेंज हो गया. And now he is no more regretful. Okay, now he is no more rude. Rude मतलब क्या? A day that you are wasting अफसोस करने में. So now his day is no more rude. Okay, so basically अब मैं अगर इस पोएट्री के क्रक्स पे आऊँ, ठीक है, बॉटम लाइन पे आऊँ, so the mood becomes happy, the mood is no more upset, the mood becomes happy. ओके, सो अब मैं अगर इस पोइट्री के बेस पे जाऊं तो ये पोइट्री मुझे क्या दिखाती है. ओके, कमिंग डाउन टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस पोइट्री. सो व्हाट इज दिस पोइट्री एक्चुअली शोइंग टू मी? सो पॉइंट नंबर 1, ये मुझे दिखा रही है कि सारे एलिमेंट्स नेचर के एक्सेप्ट फॉर पोएट. ओके, बाकी सारे एलिमेंट्स नेचर के हैं. सो ये मुझे दिखा रही है कि नेचर कितना पावरफुल है आप सोच भी नहीं सकते. तो हम कहेंगे इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, अनइमेजिनेबल पावर ऑफ नेचर. पहली चीज जो ये मुझे बताती है. अभी कौन सी पावर है? अगर इस पावर को एक्सपांड करें तो ये हीलिंग पावर है, ठीक करने की, क्योरिंग पावर ऑफ नेचर. ओके, नेचर आपके अपसेट मूड, डिप्रेस्ड मूड को एकदम से ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, होपफुल, हैप्पी, गे, ये सारे मूड similar words में बदल सकता है. So this poetry actually tells you about the unimaginable healing power of nature. आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा ये पोइट्री आपको क्या बताती है? So after this poetry is telling you that the author was experiencing a bad day, he was in a bad mood, and then there was a crow. The crow instantly makes him happy. So nature में कुछ भी positive या negative नहीं होता है. Sorry, I have a bad throat. सो नेचर में कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है. इंसान सोचता है कि ये नेगेटिव है, बट अगर आप सोचो कि नेगेटिव एलिमेंट्स हैं नेचर के अंदर, सरप्राइजिंगली दीज नेगेटिव एलिमेंट्स कैन बी द कैरियर, हमारे लिए क्या ला सकते हैं? कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी. मतलब यही चीज़ें जो हम आज तक समझ रहे थे कि भाई नेगेटिव है, डेथ से रिलेटेड है, पॉइजनस है, सॉरोफुल है, तो यही चीज़ें आगे जाके हमारे लिए दे कैन एक्चुअली ब्रिंग अ वेरी वेरी positive experience. So it can lead to some positivity. What can lead to positivity? The negative elements can lead to positivity. Optimism is another word that you will remember over here. यहाँ पे आप एक और word याद रखना, that is optimism. ओके, सो दैट इज अनदर थिंग. तो अब ये हमें और क्या दिखाता है? आई रियली वॉन्ट टू एड वन मोर पॉइंट ओवर हियर विच इज अ वेरी वेरी नाइस पॉइंट. तो ये हमें क्या दिखाता है? इट शोज दैट नेचर इज अनप्रिडिक्टेबल एंड नेचर इज डेफिनेटली द सुप्रीम. सो एक और पॉइंट आप MCQ के लिए याद रखना, इट शोज द सुप्रीमेसी ऑफ नेचर. ठीक है, नेचर कितना महान है, नेचर कितना ताकतवर है, नेचर क्या नहीं कर सकता. सो इट इज सुप्रीम. ओके, इट इज बिग एंड बिकॉज द नेचर इज सो बिग. ओके, नीचे जाएंगे. हाँ, बिकॉज द नेचर इज सो बिग, it's so supreme actually, not big, but yeah, it is grand, let's call it grand. And इसके सामने because the nature is so supreme,
आर प्रॉब्लम, हमारी जो तकलीफ है, आर प्रॉब्लम इज रियली स्मॉल, टाइनी, पेटी. जब आप नेचर को देखोगे, उसकी विशालता को देखोगे, ओके, सो यू विल जस्ट रियलाइज दैट your problem is really, really petty. So it is a very beautiful message that the poet wants to give us, and that message is related to nature. And what he's trying to tell us is, whenever you are in a negative mood, okay, whenever you are feeling sorrowful, okay, rely on nature, okay, be outdoors. What the poet is trying to tell you, okay, my bee just looked too scary, so be outdoors, okay, because you don't know at what level the nature can surprise you. So we also know one more thing about nature. We know that it is unpredictable, and when I say it is not in our control, I still mean to say that it is unpredictable. Now I really don't know how I can just zoom this out. Okay, so if there's an option of reducing the zoom, I would like you to see the whole thing right now. Yeah, so this is what we've written about this poetry till now. If I zoom it further, I think you'll not be able to read it, but we've written quite a lot. Okay, so we've written quite a lot, and you can just see all of. Okay, this looks weird. Let me just go back to our normal eyesight. Okay, I don't want you to wear specs. If you're wearing one, I'm sorry for that. But yeah, can't help it. So that is another important point. And एक और चीज़ मैं आपसे कहती हूँ, क्रो का वहाँ होना हेमलॉक ट्री पे इज नॉट अ प्लान्ड इवेंट. तो यहाँ पे आप एक और वर्ड याद रखना, ओके, दिस होल थिंग, डस्ट ऑफ स्नो, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, ये सबको मिला के आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, coincidence. We can just say that this is a very beautiful coincidence that has taken place. And ऐसी कितनी चीज़ें होती रहती है nature में, something that you don't realize, something that just tells you that nature is so unpredictable. It is coincidence, purposeful, accidental. Just remember these words as well. आप इसको बोल सकते हो कि किसी कारणवश ये हुआ था, बट जानबूझ के नहीं किया गया था. इट वॉज एक्चुअली एक्सीडेंटल, अपने आप हो गया. Nobody had planned this event. However, the result of something that was so accidental is very positive. Is this part very clear? Yes? I just hope I've not missed out on any important information. I've written down the points that I wanted you to, focus on when you do this poetry. Okay, the next important thing that I told you about this poetry that we're going to do is not just the rhyming scheme, but also what we're supposed to do is ta-da, poetic devices, an absolutely important part, definitely coming in your paper. So let's just zoom in and let's get down to poetic devices. A very important part. Okay, so I'm going to give it a nice bold heading. That is pretty bold. Okay, so let's get down to poetic devices and don't be stressed. Okay, आपको ऐसा लग रहा होगा oh God कितना सारा पढ़ना रह गया. कुछ पढ़ना रह नहीं गया, एक एक दो दो बार बस रीड कर लेना. ये चीज़ आपकी हैंड राइटिंग में लिखी हुई, वैसे भी अभी लिख रहे हो तो वो दिमाग में ही जा रहा है, सो डोंट वरी. ओके, अब सबसे पहले सबसे आसान वाली पोएटिक डिवाइस कर लेते हैं. पहले इजी वाले खत्म करते हैं. एलिटरेशन. एलिटरेशन में आपको क्या देखना है फटाफट मैं बता देती हूँ. ओके, आपके लिटरेचर में भी पोएटिक डिवाइसेस पूछ सकते हैं. ठीक है, आपको देखना है स्टार्टिंग साउंड, स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में जो कॉन्सोनेंट साउंड है, स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसका साउंड का रेपिटेशन देखना है, एंड इट शुड बी रिपीटेड 2 और मोर टाइम्स. अब एक और चीज़ आप याद रखना, अगर लाइन में कोई और पोएटिक डिवाइस है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे. लास्ट प्रेफरेंस होगा आपका एलिटरेशन. ठीक है, प्लीज़ याद रखना, इसको सबसे लास्ट प्रेफरेंस देना. अगर इससे बेटर पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है तो फिर उसको सिलेक्ट करना. अब इस पोइट्री की तरफ चलते हैं. व्हाट इज़ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड ओवर हियर? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट. अब यहाँ पे जब आप ये लाइन रीड करते हो, लेट्स जस्ट चेंज द इंक. आई लाइक माई नोट्स टू बी कलरफुल. ओके, सो हैज़ गिवन माई हार्ट. अब जब आप ये लाइन देखते हो
तो यू विल सी दैट देयर इज अ साउंड दैट इज रिपीटेड ओवर हियर. किसका साउंड रिपीट हुआ है? ह, और ह का साउंड रिपीट हुआ है. ह, ह. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए थोड़ा बोल्ड करके इसको. ओके. हाँ, तो यहाँ पे कौन सा साउंड रिपीट हुआ है? ह का साउंड रिपीट हुआ है. सो देयरफॉर वी से इट इज एलिटरेशन. और कहीं पे है एंड सेव्ड सम पार्ट. ओके, अब यहाँ पे भी जब आप देखोगे सेव्ड सम पार्ट, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एलिटरेशन. तो दूसरा एग्जाम्पल भी मैं लिख ही देती हूँ आपके लिए. सेव्ड सम पार्ट आप बुक में मार्क कर सकते हो इफ यू डोंट वांट टू राइट द होल थिंग. सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पे भी यू आर रिपीटिंग द साउंड ऑफ स. साउंड होना चाहिए, ठीक है? अल्फाबेट मत देखना, आप साउंड देखना. तो आप जो साउंड है वो स का रिपीट कर रहे हो. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन. अब आगे चलते हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस दैट हैज बीन यूज्ड ओवर हियर इज sorry, bad throat, cold, cough, fever. Okay, fever is gone finally. All right. Alliteration के बाद जो next important है that is symbolism. अब जब हम symbolism करते हैं, so what are we supposed to focus at? Symbolism का मतलब क्या होता है? Symbol. Okay, it is using representation. Okay, यहाँ पे क्या है? Symbol है, representation है किसी चीज़ का. ओके, इट इज सिंबलाइजिंग समथिंग. तो यहाँ पे हमने ऊपर भी लिखा है, एक बार फिर से लिख देते हैं फॉर योर क्लैरिटी. सिंबोलिज्म में हम बोलेंगे दैट स्नो इज यूज्ड एज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट जॉय. एंड क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर यूज्ड एज सिंबल्स ऑफ sorrow. ठीक है, ये आप ध्यान रखना. सो दे आर रिप्रेजेंटिंग sorrow एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग जॉय. तो हम बोलेंगे कि हमने इस पोइट्री में क्या यूज किया है. वन कॉमन पोइटिक डिवाइस दैट हैज बीन यूज्ड थ्रू आउट द पोइट्री इज सिंबोलिज्म. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल सी इन दिस पोइट्री इज दैट इस पोइट्री में कहीं पे भी बंदे ने कॉमा नहीं लगाया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. बाय बंदा आई मीन. So the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rude. Full stop. मतलब पूरी पोइट्री एक ही सेंटेंस में चल रही है. जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि भाई पूरी पोइट्री क्या है? पूरी पोइट्री एंजॉयमेंट है. इसी चैनल पे जब आप ऊपर नीचे नीचे जाओगे, आई मीन जब आप पुराने वीडियोस देखोगे, लास्ट मंथ के वीडियोस, आई मीन टू से, you will find my poetic devices का क्लास. check that, it will be of great help to you. 3 लेवल्स में करे मैंने पोएटिक डिवाइसेस. सो एंजॉयमेंट में क्या होता है मैं आपको फटाफट बता देती हूँ. एक सेंटेंस है, पोएट क्या करता है अपने इफेक्ट देने के लिए उसको मल्टीपल लाइंस में डिवाइड कर देता है. ठीक है, एक ही सेंटेंस को लिखता है मल्टीपल लाइंस में. सो वी विल से राइट्स इन मल्टीपल लाइंस. द पोएट राइट्स इट इन मल्टीपल लाइंस एंड ही इज नॉट यूजिंग विदाउट यूजिंग पंचुएशंस. वो क्या नहीं लगा रहा? वो पंचुएशंस नहीं लगा रहा है और मल्टीपल लाइंस में डिवाइड करता जा रहा है. जाएगा क्या दादा उधर? ओके, जाने दो. विदाउट यूजिंग एनी पंचुएशन. तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी पोइट्री ही एंजॉयमेंट है. ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट ओवर हियर फुल पोइट्री. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा नीचे जाएंगे. नीचे नीचे नहीं जाना लाइफ में, ऊपर ही फोकस करना है अपने को. द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस दैट हैज बीन यूज्ड इज पर्सोनिफिकेशन. नाम में ही देखो हिंट है. पर्सोनिफाई करना, किसी चीज को इंसानों वाली क्वालिटी देना, किसी चीज से वो कराना जो केवल इंसान कर सकता है. ओके, सो पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटी. अब यहाँ पे जब आप देखोगे पर्सोनिफिकेशन तो इस पोइट्री में कहाँ पे यूज हुआ है? इस पोइट्री में पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है चेंज्ड माय हार्ट. यार आप खुद सोचो, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. अगर हार्ट मूड बदलने लग गया तो इंसान का क्या होगा? ओके, सो हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. ठीक है, अ चेंज ऑफ मूड. आप सोचो, मूड इंसान का बदलता है, हार्ट का नहीं बदलता है. प्लीज रिमेंबर दैट. बहुत डेंजरस हो जाएगा. हार्ट बोलेगा आज धड़कने का मन नहीं कर रहा, तुम्हारा तो हो गया टाटा बाय बाय उसके बाद. सो हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. सो हार्ट को ह्यूमन क्वालिटी दी है. ओके, हार्ट हैज बीन गिवन द ह्यूमन क्वालिटी
कौन सी क्वालिटी दी है? ऑफ चेंजिंग द मूड, है ना? जिनकी बहनें हैं उन्हें पता है मूड चेंज क्या होता है, राइट? बहनों का मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है. जस्ट किडिंग, आई एम आल्सो सिस्टर, राइट? सो पर्सोनिफिकेशन हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. अब मैं आती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस पे. फटाफट सुनेंगे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी लाइक द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन. देन यू कैन स्विच ओवर टू द नेक्स्ट वीडियो एंड वॉच द अदर पोएट्रीज दैट आर देयर इन योर सिलेबस. अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाला है वो है सिनिक डकी. काफ़ी स्टाइलिश एस लिखा है मैंने. ओके, सिनिक डकी. अब सिनिक डकी इज वेरी सिंपल, ठीक है? ध्यान से सुनना. यूजिंग अ पार्ट, एक हिस्सा यूज करना, टू रिप्रेजेंट, किसी पूरी चीज को दिखाने के लिए उसी का ही हिस्सा यूज करना. टू रिप्रेजेंट द होल थिंग. सो द होल, टू रिप्रेजेंट द होल हम यूज करते हैं एक पार्ट. अब आप बोलोगे हाँ मैम ठीक है, लेकिन इस पोएट्री में कहाँ हुआ है? मैं बता रही हूँ ना यार. ओके, सो इज यूजिंग अ पार्ट. अब ये अ पार्ट क्या है? तो इस पोएट्री में हमने यूज किया है हैज गिवन माई हार्ट. तो क्या लिटरली हार्ट का मूड चेंज हुआ है? नहीं, पूरे के पूरे पोएट का मूड चेंज हुआ है. तो हार्ट किसका हिस्सा है? द पोएट. सो हम बोलेंगे इस लाइन में सिनिक डकी भी यूज हुई है. नाउ प्लीज पे अटेंशन. अगर आपको, अब आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ बिफोर यू हैव दिस डाउट. लेट्स जस्ट सॉल्व दिस डाउट, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखोगे, वाह आई एम गेटिंग स्मूथ विद दिस, राइट? ओके, सो यहाँ पे जब आप देखोगे पर्सोनिफिकेशन गिविंग ह्यूमन क्वालिटी, एक ही लाइन में 3 पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है. हैज गिवन माई हार्ट, अगर खाली इतना सा दिया है तो एलिटरेशन है. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो पर्सोनिफिकेशन है. अब अगर ऑप्शन में आपको दिया है हैज गिवन माई हार्ट, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन, सिनिकडकी एंड नन ऑफ द अबव, तो आप सिनिकडकी को वोट दोगे, आप पर्सोनिफिकेशन को वोट नहीं दोगे. पर्सोनिफिकेशन कब होगा? जब ये दोनों लाइन साथ में यूज हुई होंगी. ओके, व्हेन इट विल बी पर्सोनिफिकेशन व्हेन बोथ द लाइंस आर यूज्ड टुगेदर, जब ये दोनों लाइन साथ में यूज हुए हैं. लेकिन अगर सिर्फ सिंगल लाइन दिया है हैज गिवन माई हार्ट और सिनिकडकी और एलिटरेशन दोनों दिया है, तो सिनिकडकी इज द विनर. ठीक है, प्लीज याद रखना, सिनिकडकी इज द विनर. मैं इसको एकदम गोल्डन गोल्डन मोटी चीज से लिखूंगी. ऑलवेज वोट फॉर दिस. सो दिस विल बी योर फर्स्ट चॉइस. यही है राइट चॉइस बेबी. अगर ये नहीं दिया है तो फिर यू विल वोट फॉर एलिटरेशन. अगर ये नहीं दिया है तो फिर आप किसको वोट दोगे? एलिटरेशन को वोट दोगे. ओके, सो आई राइट इट एज द सेकेंड चॉइस. My God, this looks weird, but all right, आपको समझ में आ गया होगा. So is this thing very clear? I hope this part of explanation of Dust of Snow, I'm sure you must have not seen this poetry from these many angles. Some of them might have been covered, not all of them. So I hope you completely enjoyed this session. अब आती है बारी कुछ information की. Now please don't consider this as a promotion. This is very very important information that I want to share with you, and I really want you to win this subscription ताकि आपको plus पे जो होता है ना, इतना स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है. सोचो ये ट्रेलर है तो मूवी कितनी धांसू होगी. दैट इज ऑल माय पॉइंट. ओके, सो वी हैव अ विनर्स वीक रिमेनिंग. इट इज देयर टिल 28th of November. आप 10 डाउट पूछो एंड यू विल विन अ 15 days free subscription on Unacademy. 15 days you will get a nice free trial of Unacademy. Everything will be open to you, so you can access everything that we have taught on Unacademy portal and ask a doubt. आप जब ये फीचर यूज करते हो ऐप के ऊपर तो आपसे कोड मांगा जाएगा टू यूज दिस फीचर और टू वॉच द रिकॉर्डेड सोल्यूशन ऑफ आवर एजुकेटर. तो आप वीबी लाइव कोड बिल्कुल यूज कर सकते हो. नाउ फीचर्स ऑफ आस्क डाउट में ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं. आप जितने चाहे उतने डाउट्स पूछो. प्लीज रिमेंबर इट विल बी ओनली एंड ओनली फॉर मैथ्स एंड साइंस. ओके, एंड इसके बदले में आपको क्या मिलता है? यू गेट अ रिकॉर्डेड वीडियो सोल्यूशन ऑफ आवर एजुकेटर. ओके, दैट इज अनदर एक्साइटिंग थिंग. अब इसको यूज कैसे करना है मैं आपको फटाफट बता देती हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू टेक टू मच टाइम ऑफ योर्स. सो आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू डाउनलोड Unacademy ऐप. ओके, वंस यू डाउनलोड Unacademy ऐप, अब वो ऐप अपडेट हो गया है तो थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया है. सो यू जस्ट हैव टू
ऐप का लिंक आपको दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो यू जस्ट हैव टू गो ऑन डाउट्स एंड सॉल्यूशंस. वहाँ पे आपको आस्क अ डाउट करके ऑप्शन दिखाएगा, उस पर क्लिक करो. उस पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि भाई अब टेक अ पिक्चर या चूज फ्रॉम गैलरी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है. हाथ के हाथ फोटो खींच के भेजनी है, गैलरी में है तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर दो. जस्ट मेक श्योर यू क्रॉप द इमेज, ओके, एंड सिलेक्ट द क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है. एक साथ में अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन भेजते हो तो फिर वो कंसिडर नहीं होगा. ओके, एक बार में एक ही भेजना. So then just please select highlight and send your doubt. Select the subject, maths का है या science का है, and that's it. It's as simple as that. In less than 90 minutes आपको हमारे educator का recorded solution मिल जाएगा. So that is one point. Second point is our awesome special classes. You should really watch it. In fact मेरे बहुत सारे sessions अभी होने वाले हैं. 28th and 29th को I am doing economics के special classes. तो आपको सिर्फ app download करना है and you can also chat with me in the class, and at the same time you can ask your doubts in the class, and if you're a plus or iconics student then you can obviously raise your hand and discuss with me. इस तरीके से आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा मेरे पास में, मेरे पीछे ही है. So you will come to know, you know, on all the students who are a part of this class आपकी position क्या है, आपकी ranking क्या है, and you can also ask doubts separately. There is a separate question tab, a doubt tab that is dedicated to your doubts, तो आप वो भी use कर सकते हो. This is again free of cost. All you have to do is just download Unacademy Learner app. Link is given, and just open it, put your mobile number, enter your full name, email address and state of residence. That's it. That's it. You will be getting an OTP. आपको वो OTP डालना है, and then you can use the code VB Live. Of course आप कोड यूज करोगे, इट विल बी आस्किंग यू फॉर अ कोड. तो वहां पे कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा ऑन द स्क्रीन, कॉर्नर VB Live रिटन इन अ नाइस रेड बॉक्स. दैट्स माय कोड, एंड वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो आप कौन सी क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. जाहिर सी बात है, यू विल सेलेक्ट क्लास 10, एंड वहां पे जाके आप इवन यू कैन सेलेक्ट योर लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. एंड यू कैन इवन टाइप माई नेम एंड सर्च माई क्लासेस. नीचे मेरे कोर्स पेज का लिंक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप प्लस और आइकॉनिक ज्वाइन करते हो, सो यू गेट अ रेज अ हैंड फीचर विच यू कैन जस्ट क्लिक and we will call you live in the class and you can discuss your doubt on a mic facility, and other students will also hear what you are discussing. मैं तो क्लास में रीडिंग भी कराती हूँ. We do live reading in the class on Raise a Hand, so it's another level of improvement. Now important announcement for our class 9 students. अगर आपके पास कोई है तो आप बता सकते हो उसे. फ्री रजिस्ट्रेशन है, कॉम्बैट होने वाला है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में. We have a scholarship pool of 1 crore rupees, and these are the awards that you see on this screen. I don't have an idea which side you're seeing me. I think this side. ओके, जहाँ पे भी है रैंक 1 and 3 से लेके रैंक 4 and 10 से लेके 11 and 50, these are the scholarships that you're actually going to win. So please make sure that you're a part of it. It's going to happen on the coming Sunday. It happens on every Sunday on Unacademy. 11 AM पे होता है, and to join you will need a code. If you are not a plus student तो आपसे कोड मांगा जाएगा. You can absolutely use my code VB Live. अब आता है 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए. डूड, वो जितनी भी फोटोज आपको वहां पे दिख रही है ना सर्कल में, दोज आर दी अवार्ड्स, एंड ऑफ कोर्स यू हैव स्कॉलरशिप. सो मेगा मॉक टेस्ट इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर CBSE टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स. अब यहाँ पे क्या होगा, यू विल stand a chance to win prizes and scholarships which are total worth 50 lakh rupees, and this is going to happen on this 27th to 30th. 3 दिन होगा, एंड 5 to 6 PM के बीच में होगा. आई होप यू पार्टिसिपेट एंड आई hope you win as well. So practice more and score better. Practice is the key right now. Revision is the key right now. So in your CBSE term 1 exams, for class 10 science होने वाला है 27 नवंबर को, मैथ्स होने वाला है 28 नवंबर को, and please enroll now for the final mock test. Link is there in the description box. Timing भी आपको दिया हुआ है. Do not forget to use the code to join in. अब आप जब there are 2 kinds of subscription basically we have. Very quickly I'll tell you for the interested students who are really interested in joining Unacademy and learning with the top faculties across India. So one-to-one live homework help मिलता है आपको Iconic में, which is like, you know, you can book a session, a one-to-one personal session with your teacher, and you can discuss your doubts, clarify your concepts, and you can do live mentoring sessions, you know, during your exams, and for your exam strategy and everything. Okay, so Iconic is something that I would always recommend you to go for. And plus when you apply the code, again that beautiful red box is here on the screen, every time you apply the code you get a 10% discount.
Okay, now we have, as I told you, we have two kinds of subscriptions. So we have a plus and an iconic. Plus में आपको सब कुछ मिलेगा, which is India's best educators, interactive live classes, live tests and quizzes, structured courses and PDFs. So you'll get all these things. And when we switch over to iconic में भी ये सारी चीजें मिलेंगी. But over and above this, आपको मिलेंगे personal mentor, one educator exclusively dedicated to you, and this educator is going to solve all your doubts live in the class, and they are also going to do regular parent connect sessions, and study planner will also be provided to you. So these are some super amazing features that you get in iconic. इसलिए I would always suggest you to go for iconic. The link to the same for plus and iconic is given in the description box, so do not forget to check the description box. उसमें बहुत सारे details होते हैं, आपको कहीं कुछ पूछने की जरूरत नहीं, बस लिंक पे क्लिक करो, it will automatically take you there. And this is how your fee structure is. Once you apply the code, you get a straight 10% discount. And let me tell you about the exciting part of this taking subscription is that you get a no cost loan facility if you take 6 months and more. You get a no cost EMI facility if you take 12 months more, and you also get a facility of paying in parts if you take for more than 12 months. So this is something that's very exciting. And remember, जब भी आप 10th के लिए सब्सक्राइब करोगे, जिस भी क्लास के लिए आप सब्सक्राइब करोगे, आपको up to 12th एब्सोल्युटली फ्री मिलता है. प्लस आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी हैं जो आप ट्राई कर सकते हो. If you are serious, you know, you're someone who's preparing for or planning to prepare for NEET, IIT, JEE, UG exams, तो आप वो combination भी पूरा select कर सकते हो in your manage goals. Now, I hope to see you guys very soon in my classes, in the special class that I'm going to do, which is going to be like a complete economics revision class. And also before your exams, I'm going to keep some super important, super twisted, super turned MCQs class on the 9th and 10th of December. So please make sure you follow me and do not forget to join my channel. Last but not the least, try all these features absolutely for free on Unacademy. Do not miss it out. Let's crack it. Wish you all the very best for your board, and I hope I really made this session worth your time before the exams, and I hope you completely enjoyed it. And do not forget to like, and if you feel the video is worth it, can help your friends and cousins and everyone, so please feel free to share the video. And thank you. I'm going to see you guys very soon. Do not forget your educator, Vandana Bajaj. We be live, joining you very soon with the next poetry. Make sure you note down these points. They're absolutely important. Bye, take care, and God bless you. Ta-da!